Sir, please let us know your good name. My name is Prashant Kumar. I am one of the co-founders of the Apprentice Project. Today you are in the city of Lucknow. What is the event all about? So we run a program for building 21st century skills in children, experiential learning and project-based learning. We partner with state governments and we run this program in different government schools. We are currently working in Maharashtra, Punjab, Delhi and in UP where we are implementing the program in 16 districts. So we work with the Madhyamik Shiksha Vibhag for students in 8th to 12th grade in 16 districts of UP, which we started 2 years back. Okay. So we primarily make learning by doing activities for children, and we send it through WhatsApp. The activity videos we send it to students through WhatsApp, and they watch the video and do the activities at home, and then they create their own projects. So what we do is end of the year, academic year जब खत्म होता है, so we call selected students who have been very consistent in the program to showcase what they have learned, what projects they have made. Okay. Right now there are 50 students who have come from 16 different districts with their teachers and the district coordinators who help in implementing the program. And the students are showcasing what projects they have made, and we are getting the stakeholders that we work with. So our program is approved by Vishnupad Pandey sir, who ASPD है, माध्यमिक शिक्षा विभाग, he heads the माध्यमिक शिक्षा विभाग, and his approval is what has started this program for UP in 16 districts. So he was here for the chief guest lecturer, and he also talked about how it is important for students to learn using technology, learn using AI, and learn by doing projects, and how it is very, very relevant for teachers also to upgrade themselves using technology so that they can help create these skills in students. Apart from technology, are we also focusing on life skills? Yes, so we primarily focus on skills like problem solving, critical thinking, creativity, communication skills, which are essential in the current world for students to go into college, get into jobs and do better. So we focus on building these skills, and apart from that we also help them learn the new age requirements like financial literacy, how to manage money, digital literacy, how to deal with technology, AI readiness, how to be ready for AI or using AI in the best way. There are some experts who also discuss about the drawbacks of AI. So what do you think about that? So it's all about how well you use AI. Yes, there are problems with AI as well. What sir was talking about, Vishwan sir was talking about as well. Like it should not be used as a tool to just copy your answers. If we talk about students, it's about getting ideas and exploring new things which you might not be able to get that knowledge through classroom or through textbook. Because the extent of knowledge available in AI is unlimited. It's all about how to use that. So one of the focus we do is how to educate children about the ethical use of AI, how to use it in a safe and productive way. And it's essential that teachers or parents also keep a check on that so that students are not misusing. As AI stands for artificial intelligence, so what do you think that how will it adjust with the natural human intelligence? As artificial intelligence is supplementing or improving what humans can do. So Pandey sir was also talking about how it is important for teachers to do better and become better teachers by using AI. But AI can't replace a good teacher. The human element there is very, very important because they make that connect with the students. So learning is a two-way process. It's not just about seeing something from the internet and learning everything there, because the human plays an important value there. So the essence is for teachers to use this tool and get better at teaching. If you don't, just like any other technological improvement, you will be left behind. Before coming to Lucknow, I think you were in Delhi, right? Where are you heading towards after Lucknow? Now I'm heading back to Pune. Pune, okay. We have a program in similar event in Moga district in Punjab in on May 15th. Okay. So that's the next event that's going to happen, and then after that we'll have it in Maharashtra. Thanks a lot. Good day ahead. जी नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। जी मैं अरविंद कुमार पांडे अमेठी जनपद से आया हुआ हूँ और मैं जनता इंटर कॉलेज रामगंज अमेठी का अध्यापक हूँ। आज यहाँ पर हम लोग एक उत्सव है अप्रेंटिस योजना के तहत, उसके माध्यम से बुलाया गया था हम लोगों को, और आए हम लोग जनपद से मेरे 4-5-6 लोग आए हुए हैं। और विशेष रूप से कहा जाए तो बड़ा ही बढ़िया एक तरह का एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, जिसके द्वारा हम बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक से इतर, चाहे अप्रेंटिस हो, चाहे AI हो या लर्निंग हो, कोडिंग हो, उससे संबंधित चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं।
जिसमें हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि 21वीं सदी में हम कैसे उनको उस लायक बनाएं कि आने वाली जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उनका सामना करते हुए वो आगे बढ़ सके और अपने आप को इन कठिनाइयों से, इन परिस्थितियों से उबर करके अपने आप को अच्छी चीज़ों में लगा सकें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि AI जो है ये बच्चों के लिए 21वीं सदी में बहुत आवश्यक है, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए भी, जो आज के इस समय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक अध्यापक AI से रिलेटेड जानकारी नहीं रखता है तो शायद आने वाले समय में ना वो शिक्षण कार्य कर पाएगा, ना अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएगा। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर एक अध्यापक इससे जुड़े और अपने सभी बच्चों को इससे जोड़ते हुए उनको आगे बढ़ने में, भविष्य के लिए उनको इतना बढ़िया से तैयार करें ताकि उनको कोई कठिनाई ना हो। और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया इस विषय पर वार्ता करने का। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जी और सुल्तानपुर में शिक्षा के स्तर में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर है। बताएं। क्योंकि देखिए, ये शहरी क्षेत्र है, वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें उन बच्चों को जोड़ करके ले चलना पड़ता है। तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं जब हम उनको इस विषय में बताते हैं। और आपको बताएं, हमें गार्जियंस का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि आज के ज़माने में ना कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को मोबाइल देना पसंद नहीं करता है। उससे डर है कि कहीं मेरा बच्चा भटक ना जाए, क्योंकि आज के परिदृश्य में आप जानते होंगे कि क्या क्या चीज़ें नहीं आपको मिल जाती हैं। तो गार्जियंस का डर है और वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक और गार्जियन दोनों को सतर्क होना होगा और सहज भाव से उन्हें, बच्चों को ये प्रेरित करना होगा कि AI से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ज्ञान के लिए हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए हैं। और स्वयं गार्जियन भी और शिक्षक भी उनको जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे कि AI के माध्यम से कैसे बच्चा अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। बाकी डिफरेंस तो बहुत है, ये शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ आती होंगी हमें शिक्षण कार्य करने में, और साथ ही साथ इन शिक्षणेतर ये जो विषय हैं इनमें बच्चों को आगे ले आने में। आपने AI पे काफी जोर दिया। जी सर। क्या AI की शिक्षा सामग्री हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है? सर अभी तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम उससे जो इंग्लिश में चीज़ें हमको मिलती हैं तो हम उनसे थोड़ा बहुत हिंदी के माध्यम से अपने बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से हमारा विद्यालय जो परिवार है, चाहे शिक्षक और शिक्षिका बहनें हैं और हमारे विद्यालय के प्रबंधक जी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं और डियावस महोदय हैं, और वो इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं और प्रेरित करते हैं कि किस तरह से हम विभिन्न कार्यों में अपने बच्चों को जोड़ें और अपने साथ लेकर के चलें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपने बताया है कि AI से बच्चों का जीवन बेहतर बनेगा। इन दिनों आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में जो तापमान चल रहा है वो 40 डिग्री पार है, बल्कि 43 डिग्री पार है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे गर्म जिला गया है बांदा, वहाँ 47-48 डिग्री तापमान चल रहा है। तो इसका क्या हल है? इसको हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस समस्या से उबर पाएं? ये प्राकृतिक चीजें हैं, इस पर तो हमारा जो रुकना नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा उद्देश्य जो है शिक्षण कार्य करना है। और जैसे ही ये गर्मी का मौसम आता है तो थोड़ा शैक्षिक प्रक्रिया में बाधा आती है, शिक्षण प्रक्रिया में। लेकिन यही जैसे ही मौसम सही होता है, क्योंकि अभी गर्मी में ना बच्चा हो सकता है 2-4-6 दिन विद्यालय ना आए और अभी भी रिजल्ट निकले हुए हैं, लेकिन जैसे आता है हम अपने बच्चों को उस लाइन पे ले आते हैं कि विषय के साथ साथ इन विषयों पर भी उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं और पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसमें हमारा विद्यालय, हमारा जनपद का जो विभाग है, डियावस महोदय का कार्यालय, वो बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।